friends, in this topic we will discuss about the reflection of light at a plane surface. So you know already the laws of reflection that you have studied in the previous standard, in which when the ray of light incident on the reflecting surface like the mirror, so suppose this is the incident ray, this is the normal, that is the perpendicular drawn to the reflecting surface, suppose that is Mn, and this is the reflected ray. And you know already angle between the incident ray and the normal is called as angle of incidence. Angle between the normal and the reflected ray is called as angle of reflection. And we have already studied the laws of reflection, in which angle of incidence is equal to the angle of reflection. Incident ray, normal and the reflected ray lie in the same plane, and incident ray and the reflected rays are on the opposite side of the normal. These are the laws of reflection that will be known to you already. Now here we have to study same topic, but we have to take here the reflection of plane wavefront. We have to take the reflection of plane wavefront from the plane surface or the reflecting surface like the mirror, which will be shown in this figure. That is, Mn is the reflecting surface, that is suppose mirror. So here consider a plane wavefront AB. This is the plane wavefront AB. We call it as an incident wavefront. क्या बोल सकते हैं इसको अपन? Incident wavefront, which is perpendicular to the plane of that board. This is the cross section of that complete refraction reflection system will be taken here. AB is the incident plane wavefront, and RA, this one, RA and QB be the incident ray, RA और QB, ये दोनों कौन से रेज हैं? इंसिडेंट रेज. RA and QB are the incident rays. Okay, we bounded that plane wavefront AB. दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर? Plane wavefront AB. Now you know already the Huygens principle. इसमें क्या बोला है? Every point on the wavefront will be act as a secondary source of light, and it is the secondary wave, जिसको क्या बोलते हैं अपन? Wavelets. And these wavelets are propagated in the forward direction. So here also, suppose this wavefront AB reaches to that point B at time t equal to 0. ये जो wavefront AB है उसको पॉइंट ए पर काम कभी छोड़ा at the time t equal to 0. And this point B is also obtained here at the time t equal to 0. But this ray reaches from that point B to C in time t. समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसा है प्लेन वेवफ्रंट AB, यहाँ पर दो बाउंडेड रेज है, कौन सा? RA और दूसरा कौन सा अपना रे? QB. इंसिडेंट रे के बीच में क्या था? प्लेन वेवफ्रंट AB. प्लेन वेवफ्रंट AB में का ये जो पॉइंट A है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कब रीच हो रहा है? एट द टाइम t इक्वल टू 0. सिमिलरली इस पॉइंट B से इस पॉइंट C तक के जो रे ऑफ लाइट है कितने टाइम में रीच हो रहा है? इन टाइम t. ओके, अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट विल बी एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. ओके, इट emits the secondary wavelets. So here also from this plane wavefront AB, every point on that plane wavefront AB will be act as a secondary source of light and emit the secondary rays. क्या करेगा इस तरह से? हर एक पॉइंट क्या करेगा यहाँ पे? सेकेंडरी रेज इमिट करेगा. ओके, लेकिन ये जो सरफेस है कैसा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मींस दैट फ्रॉम द पॉइंट ए द सेकेंडरी रेज विल बी गेट रिफ्लेक्टेड बैक. सेकेंडरी रेज क्या होगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो जितने टाइम t में ये एवरी पॉइंट पर के जो वेवलेट्स है पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लेकर इस पॉइंट C तक पहुंचेंगे, तब तक के इस पॉइंट A से बाहर आने वाले वेवलेट्स क्या करेंगे? विल बी कवर द डिस्टेंस. हाउ मच? Vt. कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? Vt, where that v is the speed of light. समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर से सुनो. पॉइंट A पर वेवफ्रंट कब रीच हुआ? एट द टाइम t इक्वल टू 0.
जिस समय वेवफ्रंट पॉइंट ए पर है उस समय उसका जो दूसरा एंड है वेवफ्रंट का दैट इज बी, यहां पर भी टाइम t इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, ये जो इंसिडेंट रे क्यू बी है ये पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक के कितने टाइम में रीच हो रहा है, कैपिटल टी में। अब ह्यूजेंस प्रिंसिपल का कहना क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट विल बी एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इज द सेकेंडरी वेव्स। तो ये जो वेवफ्रंट ए बी है इस पर का हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट करके एक्ट होगा कि नहीं होगा, और क्या इमिट करेगा वो, इट इमिट्स द वेवलेट्स। जितने भी हर एक पॉइंट पर से यहां से वेवलेट्स आएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, तो क्या होंगे, धीरे 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 यहां तक आगे बढ़ते हैं, कहां तक, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस mn तक। लेकिन पॉइंट ए एग्जैक्टली कहां पर है, पॉइंट ए ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां से जो सेकेंडरी वेव्स बाहर आएगी वो क्या होगी, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी। तो टाइम t में इस पॉइंट ए से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेव रहेगी दैट विल कवर द डिस्टेंस हाउ मच vt, व्हाई, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है v, टाइम कितना लग रहा है t, इस पॉइंट b से रे को c तक पहुंचने में टाइम t लग रहा है। उस पर्टिकुलर टाइम में जो पॉइंट ए कैसे एक्ट कर रहा है एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इज द सेकेंडरी वेव व्हिच विल बी गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसको, कैपिटल टी, स्पीड कितनी बोले अपन ने v, तो डिस्टेंस v इक्वल टू कितना होगा, v हुआ कि नहीं हुआ। मींस the secondary wave which will be get emitted from that point A will cover the distance how much, vt, in time how much, t. So we will get here the spherical wavefront like this of the radius vt। लेकिन अभी जो बाकी के पॉइंट्स है यहां से इनका क्या होगा, टाइम t में रे ऑफ लाइट b से c पर पहुंच रही है। तो ये जो यहाँ के जो सेकेंडरी जो प्लेन वेवफ्रंट ए पर का हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो हर एक का डिस्टेंस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेम है कि कम ज्यादा है। इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो इससे कम है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, यहाँ से ज्यादा है। इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, यहाँ से ज्यादा है कि नहीं है। यहाँ से जो सेकेंडरी वेव बाहर आएगी वो भी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिड होगी। यहाँ से क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी उस समय क्या हो गया, जब टाइम t में ये b से पॉइंट c तक लाइट पहुंच गई, यहां से जो सेकेंडरी वेव बाहर आएगी उसका रेडियस कितना रहेगा, 0, क्योंकि टाइम t में यहां से लेके तो यहां तक लाइट वेव रीच हो गई। टाइम t में जब टाइम t कैपिटल T हो गया उस समय क्या हो गया, इसका स्फेरिकल वेवफ्रंट यहां तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसका रेडियस 0 रहेगा। लेकिन यहां से जो वेवलेट्स यहां पर आएगी उसका रेडियस क्या रहेगा, थोड़ा सा कम का, सॉरी रेडियस क्या हो जाएगा, इसका कम होते जाएगा ऐसे ऐसे। यानी यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव रहेगी टाइम t में क्या करेगी, धीरे 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 अपना सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर आएंगे उसके, क्योंकि जिस टाइम t में यहां का जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां तक के पहुंच गया है, हर एक पॉइंट पर के सेकेंडरी वेव्स को निकलने के लिए टाइम लगेगा। यहां से क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उनको टाइम लगेगा। यहां पे इस लोग यहां से जब रिफ्लेक्ट होंगे तब यहां से सेकेंडरी वेव्स हर एक पॉइंट से मिलेंगे अपने को, जिसका स्टार्टिंग का पॉइंट जो रहेगा c का, उसका रेडियस क्या रहेगा, 0। इसके बाद के रेडियस क्या होगा, बढ़ते जाएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और यहां पर क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम रेडियस। सो वी विल ड्रॉ हियर द एनवलप टू ऑल दीस secondary wavelets which are obtained from that reflecting surface mn in between the point A and C. So you will get that reflected wavefront. क्या मिलेगा यहां से, reflected wavefront। समझ में आया क्या, फिर से देख लो, पॉइंट ए पर वेवफ्रंट जब पहुंचा तब टाइम क्या बोला अपन ने, t इक्वल टू 0। बाकी जो वेवलेट्स है यहाँ जो भी यहाँ पे हर एक पॉइंट पर का जो वेवफ्रंट एबी के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे कैसे एक्ट करेंगे, बोलते हैं अपन एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यहां से जो भी वेव्स आएगी उस पॉइंट बी से सी तक पहुंचेगा, टाइम कितना लगा है अपन कैपिटल टी। लेकिन यहां पर जो पॉइंट ए पर वेवफ्रंट पहुंचा है, ये पॉइंट सी से पहले पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी यहां से सेकेंडरी वेव इमिट होगी उसका रेडियस बढ़ते जाएगा, आगे आगे बढ़ती जाएगी। उसी टाइम में क्या होगा, बी से लेकर लाइट कहां तक पहुंचेगी, सी तक के। यहां पे हर एक पॉइंट में से आने वाली वेवलेट्स की क्या होगी, इस पॉइंट बी और सी, ए और सी के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन उनको रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो लेट पहुंच रहे
रेड पहुंचने के बाद में फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तो क्या होगा, जो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट बाहर आएगी उसका रेडियस क्या होगा, धीरे 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 बढ़ते जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम मिलेगा। और सभी का एनवलप निकालेंगे अपन तो क्या मिलेगा अपने को, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दैट इज which one, CE. Okay, AP is the normal, AP is the normal which is perpendicular to that reflecting surface MN, and this AQ is the reflected ray, sorry, AE is the reflected ray. AE क्या है, AE is the reflected ray. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया angle between the incident is sorry reflected ray and normal is called as angle of reflection. तो यहाँ पर भी देखो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया RA is the incident ray और this QC sorry AE is the reflected ray. This is the angle of reflection or not. Similarly this is the parallel rays. RA को जो parallel ray था कौन सा था अपना QB, वो कहाँ पहुंचा, पॉइंट C पर, यहाँ से क्या होगा फिर से रिफ्लेक्ट होगा, ये CF क्या होगा, this is the reflected ray. From the geometry of the figure, this is the angle of incidence I and this is the angle of reflection, that is the R. कैसा है देखो, ये एंगल I हो गया, ये कितना होगा 90 माइनस I, ये 90 माइनस I है, ये I है, this is the angle of incidence I, ये 90 माइनस I, ये भी कितना होगा 90 माइनस I. Which one? This one, sorry. ये ऊपर का एंगल कितना होगा 90 माइनस I, ये 90 माइनस I, ये 90 ऑलरेडी, और इस ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C के अगर टोटल करते हैं कितनी मिलना चाहिए मेरे को 180. तो देखो यहाँ पे ये कितना है 90 माइनस I, ये कितना है 90 प्लस ये वाला एंगल A, that is equal to 180. 90 plus 90 180. Okay, so 180 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर R equal to A minus I plus A equal to 0 हो जाएगा, तो I equal to A, एंगल A की जगह कितना आया I. उसी तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ये कितना होगा 90 माइनस R, ये ऑलरेडी कितना है 90, ये भी कितना निकलेगा उसके हिसाब से, कौन ट्रायंगल में से, ट्रायंगल ABC में से इसका मेजर कितना निकलेगा R, जैसा यहाँ पे निकाला अपने I का मेजर. Now from the figure again it is seen that triangle, देखो दो ट्रायंगल बोलते ट्रायंगल AEC and triangle ABC are right angle triangle. right angle triangle लिखेंगे, देखो बराबर triangle AEC and triangle ABC, these are the right angle triangle. Hypotenuse of that both the triangles are common. AC, this AC. Hypotenuse कैसा है, कॉमन होगा, इस दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है. ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है. ये दोनों एंगल कैसे, एंगल AEC और एंगल ABC, these are congruent to each other. This is the wavefront which you have drawn, hemisphere which you have drawn of radius VT. ऐसे निकाले थे क्योंकि यहाँ से जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर आएंगे बोले थे अपन ने, वो टाइम कैपिटल T में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, VT इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाया. तो ये जो डिस्टेंस AE है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस बना कि नहीं बना, तो दैट AE is equal to VT. That BC is equal to also VT. Why? क्योंकि क्या बोले थे अपन ने, टाइम टेकन बाय द रे टू रीच फ्रॉम दैट B to C is capital T. So distance covered BC equal to how much again it is VT. Means these two triangles AEC and triangle ABC are congruent to each other. दोनों ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक साइड कॉमन है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, दोनों में एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों की एक साइड कैसी है, having the same length, that is the VT is AE equal to BC. Therefore this triangle
AEC and triangle ABC are congruent triangle. कोणते ट्रायंगल है वो? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. ओके, अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है so their corresponding angles are also congruent. Means here that angle BAC and this triangle angle EAC or ACE, angle BAC is congruent to angle what? ACE. Okay, but angle BAC equal to कितना? I, and angle AC equal to कितना? From the geometry, that is R. So this angle of incidence is equal to angle of reflection. फर्स्ट लॉ अपना प्रूव हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर. ओके, नाउ सी हियर अगेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, these are on the opposite side of the normal, and normal incident ray and the reflected ray are in the same plane. यहाँ पर भी देखो ये incident ray, ये reflected ray, यहाँ पे normal रहा तो सबके same plane में ही नहीं है. All these are the same plane. Again they are opposite, or they are in the opposite of that normal, opposite side of the normal. फिर से देखो यहाँ पे this AB is the incident wavefront बोलते हैं. Suppose AB is the object which emit the light waves, which will be reaches up to that reflecting surface, that is MN. So here this point A will be get reflected back as this point E, and this point C will be get reflected back as the point B. Means अगर यहाँ पर AB है incident wavefront, these are the light waves which will be get emitted by the object which will be incident on that mirror MN. After the incidence, this point A will be get reflected back as a point E, and this point B will be reflected back as a C, and this point A will be reflected back as a E. So this EC is the image of that reflected object. this ये हो गया incident वेव फ्रंट. इसी क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. लेकिन यहां पर क्या बोले थे अपन ने? AB इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट वेव आएगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होगा? ये पॉइंट A कैसा रिफ्लेक्ट होगा एज ए पॉइंट E, और ये पॉइंट B कैसा रिफ्लेक्ट होगा एज ए पॉइंट C. मींस EC इज द इमेज ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट at a plane surface. Again there will be the next topic, that is the refraction of the light from the refracting surface. We will discuss in the next lecture.